rallies are concerned, but at the moment, this is a breaking news coming in from Bihar's Lakhisarai, where unidentified miscreants have attacked BJP's candidate from there, Vijay Kumar Sinha, also the Deputy CM. The visuals of the convoy being attacked are now on your screens. Of course, we will keep getting you the details as they trickle in, but this is the latest that's come in from Lakhisarai, where Deputy CM Vijay Kumar Sinha is the candidate. His convoy was reportedly attacked. As you can see, a lot of crowd there, the police trying to manage the mob. But what exactly happened, we'll get you more details of that. They're still trickling in. But this is, remember, this is a day when Bihar is voting in the first phase. Quickly take a look at what the Deputy CM Vijay Kumar Sinha has said about this attack. ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हम मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। All right, let me go across to Arunil, my colleague. He's getting us more of the details about this incident. Arunil, what exactly happened here? Well, this is Vijay Kumar Sinha, the Deputy CM of Bihar. He's from the Bharatiya Janata Party, contesting from Lakhisarai. He's claiming that some unknown miscreants attacked him, attacked his car as well. Now, startlingly, what he's been saying is that when he approached the local SP, the SP was not helping him. He has directly pinned the blame on the RJD, saying that these are RJD goons who have been attacking him, so that he doesn't move within his constituency from where he is contesting. He doesn't meet the voters as well. The SP not supporting is a bit of a concern because he's from the ruling party. It is the Bharatiya Janata Party as well as the JDU, CM Nitish Kumar, who are ruling Bihar at present. The police officers not cooperating with the Deputy CM of the state is again a startling claim that is coming to the fore. All right, Arunil, thanks very much for joining us at the moment. I'll keep coming back to you. This is the latest, viewers. Arunil was getting us what exactly happened. You also heard Vijay Kumar Sinha, the Deputy Chief Minister, saying these people, these men, the crowds who attacked his convoy are from the RJD. Listen in to what he had to say about this incident. ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं।
अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ? हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है, क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हम मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से, धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं, और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। All right, let me go across to RJD's Shakti Yadav. He's joining us on the phone line. Shakti Yadav जी, डेप्यूटी सीएम कह रहे हैं कि ये आरजेडी के गुंडे थे जिन्होंने अटैक किया उनके कॉन्वॉय पे। नहीं, सवाल ये उठता है कि मिस्टर विजय सिन्हा अभी डिप्टी सीएम है बिहार के, जेड+ सिक्योरिटी होल्डर है, और ये सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। जेड+ सिक्योरिटी होल्डर पर भला कोई अटैक करे, ये बात समझ से परे है। और बिहार का डिप्टी सीएम होने के नाते मैं इनको तो सबसे माफी मांगनी चाहिए बिहार के आवाम से कि जेड+ सिक्योरिटी होल्डर होने के बावजूद भी ये कह रहे जंगल राज का भी प्राय ही विजय सिन्हा बन चुका है। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार के अंदर में प्रशासनिक अराजकता, जिस तरह से प्रशासनिक अराजकता बूथों पर देखी जा रही है। शक्ति सिंह जी, वही वो कह रहे हैं कि Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद ये क्राउड ने मेरे कॉन्वॉय पे अटैक कर दिया। आप विजुअल्स देख रहे हैं। ये व्यक्ति झूठा है, काफी झूठा व्यक्ति है, सस्ती लोकप्रियता के लिए करता है और पूरा बिहार जानता है। ये हास्य पर बंदा है, ये चुनाव हार रहा है, इसलिए लगातार ये बोल रहा है। एक्चुअली मैं अभी चूंकि खुद ही मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, इस बाबत पूर्विया ने मेरे को जोड़ा, टाइम्स नाउ वाले लोगों ने कहा रिएक्शन की बात है, तो लखीसराय की घटना की हमने पड़ताल की है। एक उप मुख्यमंत्री बिहार का है, और भाई इस पर हमला होने का सवाल कहाँ से खड़ा होता है जी? सवाल नंबर 1, जेड सिक्योरिटी होल्डर पर आपने कभी सुना है? ऐसा संभव नहीं हो सकता है। और इनकी भाषाओं में दो अर्थी भाव है। और मैंने कहा कि बिहार अभी इन दिनों काफी प्रशासनिक अराजकता के शिकार हो गए। और उतना नहीं, जो देखा जा रहा है डिप्लॉयमेंट ऑफ मजिस्ट्रेट्स देखे जा रहे हैं, यहाँ तो कास्ट वाइज काम किए जा रहे हैं। इतना हद हो चुका है कि आप देखेंगे कि जहाँ मैं भी लड़ रहा हूँ वहाँ पर इतनी उदासीनता उन बूथों पर है जहाँ पर वोट लंबी लाइन लगी हुई है, स्लो पोलिंग चल रही है। और जब उसकी शिकायत होती है इनके अधिकारी, तो वो चीजें हैं, वो कह रहे हैं विजय सिन्हा जो घेरी, अब उसको कह इनको आपस लेने चाहिए इन्हीं के शब्दों में। ओके, ठीक है। शक्ति सिंह यादव जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। द आरजेडी पुटिंग द ब्लेम बैक ऑन द बीजेपी एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देयर ऑफ बिहार। रिमेंबर, Vijay Kumar Sinha has pinned the blame on RJD of the kind of attack that his convoy has suffered. The RJD is saying that he's lying and these accusations are absolutely baseless. We'll keep getting you more updates from Bihar. At this moment, we're slipping into a short break.